myself Ram Singh Rajpuri. Once again I welcome you on my channel. Today we are going to discuss an item that is consumable goods or goods consumed. So if any material or a consumable goods, how accounting treatment to be take place in not-for-profit organization. So first of all, just you know that in schools or in sports material and hospital, just as in sports club, sports material is consumed. Sports material is consumed. In hospitals, we know medicine consumed. You know, in schools maybe stationery consumed, but stationery may be consumed in our other organization also. So how will you come to know that is it consumable goods or not? So there are main 3 points for a consumable goods. If opening stock of material, closing stock of material, and cash paid for material or purchase, sometimes it may be given purchase, cash paid for material are given. It means if in a question or in information, opening stock of material, maybe stationery, maybe sports material, maybe medicines, closing stock of material and cash paid for material is given, so that is considered as a consumable goods. So how much stock we purchase, how much material we consume, and how we will record in the books of accounts of a not-for-profit organization. In such a case, material consumed is expenditure and that is shown in income and expenditure account, and stock of material is asset and that is shown in balance sheet. Apart from maybe the other information like a creditor or prepaid, so we will discuss one thing. So first of all, how we will calculate a material consumed. So let's just prepare a working note. In simple way, how we will calculate a material consumed. Material consumed is a common word. It may be a stationery consumed, maybe medicines consumed, maybe sports material consumed, whatever given in the question. So very first we will take opening stock of material, whatever amount you will write here, add net purchases of material. So in the opening stock we will add a net purchase. Net purchase means if given purchase return, so purchase less purchase return is your net purchase, less closing stock. Out of this amount we will minus closing stock. So we will have material consumed. So this will be your material consumed. So material consumed will be your expenditure, and this amount will be shown in income and expenditure account. Let me take example 1. In case first, let's suppose we have the following information regarding Azad Club. Suppose these are the information of Azad Club. We can take any example. Suppose the given informations: opening stock of stationery 5,000, closing stock of stationery 7,000, and stationery purchase. So in this case, stationery purchase is given in the question. So when the purchase, opening stock and closing stock all are given, so how will we calculate? So this is your working note. Calculation for cost of stationery consumed. Calculation for cost of stationery consumed. So as I just explained, very first we take opening stock. So opening stock of stationery. So how much opening stock of stationery? So opening stock of stationery are being rupees 5,000. You can like this. You can just prepare a add purchase. How much stationery we purchase?
13,000. So we purchased stationery 13,000. So 15 plus 13, what is the total? The total is 18,000 less closing stock. So closing stock of stationery is given here 7,000. So once just I repeat, opening stock of stationery 5,000, add purchases of stationery 13,000. So 5 plus 13, 18, less closing stock 7,000. So 18 minus 7 is, that is 11,000. This is your stationery consumed. So stationery consumed as expenditure, and this is presented or shown in income and expenditure. How will you prepare or present in income and expenditure account? Income and expenditure account for the year ended, we have to write closing date whatever given in question. So you know this is debit side, this is credit side. Debit side, you know your expenditure side, rupees, income side, and rupee or amount. So how much stationery we consume? So stationery consumed is expenditure. So we will write to stationery consumed. So stationery consumed are expenditure 11,000. And what is the opening stock? That goes to opening balance sheet. Closing stock goes to closing balance sheet. The stock of stationery is presented in balance sheet. Opening stock in opening balance sheet on asset side, closing stock in closing balance sheet on asset side. We take another example. In this example, if you just see, we don't have the value of stationery purchase, that is not given in question. We have to find out. Let me discuss one more item. Opening stock of stationery rupees 5,000, closing stock of stationery 7,000, cash paid for stationery. So in place of stationery purchase, what is given? Cash paid for stationery. Sometimes it may be given cash paid for creditor. Yeah, cash paid to creditor for stationery also mentioned here. 25,000. Creditor for stationery opening, creditor for stationery closing. So in this example, just date is not given, so I consider opening and closing. So because the closing date of year is not given. Suppose in simple way, how we will calculate. So you know students, creditor refers credit purchase. Creditor कब होगा? जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन उधार खरीदेंगे. तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग, इसका मतलब क्या है? ये क्रेडिटर पहले से हमारे पास है ओपनिंग में, तो इसका मतलब स्टेशनरी कब खरीदी थी आपने? पिछले साल. तो क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, इट मीन्स स्टेशनरी परचेज इन करंट ईयर बट स्टिल अमाउंट इज अनपेड. तो ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब हुआ स्टेशनरी पिछले साल खरीदी थी लेकिन पेमेंट इस साल किया. क्लोजिंग क्रेडिट की मीनिंग क्या हुई? स्टेशनरी इस साल खरीदी लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया. तो हाउ विल यू कैलकुलेट स्टेशनरी कंज्यूम? तो वी विल स्टार्ट कैश पेड फॉर स्टेशनरी. कैश पेड फॉर स्टेशनरी. तो यू नो हाउ मच कैश वी हैव पेड इन करंट ईयर. दिस इज नॉट परचेज, यू मस्ट माइंड. ये परचेज नहीं है. कैश पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी को खरीदने के लिए कितना पैसा चुकाया? तो इन करंट ईयर वी पेड 25,000. अभी आपने इस साल पैसा चुकाया, हो सकता है पिछले साल का इस साल चुकाया, ये भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर का एडवांस चुकाया. तो इसको आपको परचेज में कन्वर्ट करना है. तो कैश पेड फॉर स्टेशनरी. तो वी हैव टू इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम स्टॉक. क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग. तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सिमिलर है. जैसे कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है, इसका मतलब चुकाना बाकी. क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का मतलब भी क्या हुआ? पेमेंट करना बाकी. इट मीन्स एक्सपेंस इनकर्ड इन करंट ईयर बट स्टिल नॉट पेड. तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग, तो ये आप आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कंसिडर कर सकते हैं. यू कैन कंसिडर
स्टैंडिंग क्लोजिंग एंड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। तो इफ यू रिमेंबर पहले भी मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लोजिंग ऐड होते हैं, ओपनिंग लेस, तो क्लोजिंग ऐड और ओपनिंग लेस। तो वेरी फर्स्ट वी convert the cash payment into stationery purchase. So we will do next add creditor for stationery closing. So closing creditor for stationery are 4,000. So we are writing the amount 4,000. Add creditor for, so now we will just less not add because this is opening, less creditor for stationery opening. तो क्लोजिंग को ऐड किया तो ओपनिंग हम क्या करेंगे लेस। तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग है 5,000, तो वी विल -5। तो वेरी फर्स्ट 25 प्लस 4 29,000 माइनस 5,000। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग है 5,000, तो 29 minus 5, how much it is? 24,000. So this is what? Stationery purchase. इससे आपकी स्टेशनरी परचेज निकलेगी। दिस इज नॉट स्टेशनरी कंज्यूम, दिस इज योर स्टेशनरी परचेज। अब स्टेशनरी परचेज हमारी निकल गई। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज गिवन। तो रेस्ट यू ऑल नो। हम क्या करेंगे इसमें? वी विल एड ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आर 5,000, तो 24,000 स्टेशनरी परचेज है, 5,000 स्टेशनरी हमारे पास पहले से पड़ी है, तो टोटल कितनी हो गई 29,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन फुल यू कैन राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हाउ मच? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वी हैव 7,000, तो यू माइनस 7,000। तो वंस अगेन लेट मी जस्ट डिस्कस वन मोर आइटम अगेन। ये सारे आइटम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कैश पेड फॉर स्टेशनरी, कैश पेड फॉर स्टेशनरी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो हमने स्टेशनरी खरीदने के लिए पेमेंट किया, खरीदी कितनी वो अलग है। तो कैश पेड फॉर स्टेशनरी इज 25,000। तो वी हैव 4 इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम दिस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर। क्रेडिटर को आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। वैसे तो क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग, इसका मतलब ये पैसा पहले से क्रेडिटर हमें मांग रहे हैं साल के स्टार्ट में। तो इसका हमने स्टेशनरी इस साल नहीं खरीदी, पिछले साल खरीदी थी, पैसा चुकाना है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग, इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इट मीन्स वी परचेज स्टेशनरी इन करंट ईयर। तो पहले हम क्या करेंगे, परचेज निकालेंगे। तो कैश पेड फॉर स्टेशनरी एड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग। तो अमाउंट का ध्यान रखना ओपनिंग और क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग है आपका 4,000। देन क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग, तो 25 प्लस 4 29, ओपनिंग को माइनस करेंगे 5,000, तो 24 आपकी स्टेशनरी परचेज। ओपनिंग स्टॉक ऐड किया 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया, तो 29 माइनस 7, तो दिस इज योर 22,000 स्टेशनरी कंज्यूम। ये आपकी क्या निकल जाएगी, स्टेशनरी कंज्यूम निकलेगी। तो स्टेशनरी जो कंज्यूम है वो हमारी क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाउ विल यू प्रेजेंट इट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, whatever date you to mention. This is debit side. You know, debit side is your expenditure side. This is amount of rupees. This is your income side and amount of rupees. So this is the format of income and expenditure, you all well know. So stationery consume is expenditure. So to stationery consume,
तो स्टेशनरी कंज्यूम हाउ मच 22,000. तो दिस इज योर एक्सपेंडिचर. We will write. Now apart from stationery consume we have other information. If you to prepare final account, you to prepare opening balance sheet, you to prepare closing balance sheet. तो ये प्रेजेंटेशन मैंने बता दिया आपको. इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे बताओगे? हाउ विल यू प्रेजेंट इन ओपनिंग बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट ओपनिंग. तो यू नो इन ओपनिंग बैलेंस शीट we to present the opening balance sheet. So this is liability side, rupees, asset side and rupees. Rest you all know. So this is rupees column or amount column. ओपनिंग बैलेंस को अपन ओपनिंग बैलेंस शीट में बताएंगे. तो व्हाट आर योर एसेट्स? यू टू राइट ऑन एसेट साइड. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग एसेट है. तो वी विल राइट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग गोज टू ओपनिंग बैलेंस शीट. दिस इज ओनली प्रेजेंटेशन. इसको आप बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे? बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहे हैं. क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में. क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग लाइबिलिटी है. तो यू राइट ऑन लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी. तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी हाउ मच ओपनिंग? 5,000. ठीक है 5,000. तो अब क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बनाएंगे. तो बैलेंस शीट ऐसा कैसे बनेगी? अब मैं इसे ओपनिंग से क्लोजिंग में बना रहा हूं. तो बैलेंस शीट ओपनिंग की जगह क्या लिख देंगे हम? क्लोजिंग. अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे. इफ वी प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट तो वी टू प्रेजेंट क्लोजिंग वैल्यूज. तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी लाइबिलिटी ही है. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट है. तो क्लोजिंग के अंदर आप क्या करोगे? क्लोजिंग की वैल्यू बताओगे. तो व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी? क्लोजिंग ऑफ स्टॉक स्टेशनरी इज 7,000. तो we will write 7,000. What are the creditor for stationery closing? 4,000. So we will change in 4,000. So in this way you can present in your balance sheet at the end. So this is the way how to present in the final account stationery consume. So in case third, the same question, let me extend the same question. तो इसी क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ाते हैं. Prepaid for stationery. Prepaid for stationery opening 3,000. Amount is not matter. Amount कोई भी हो सकता है. Prepaid for stationery closing 2,000. अब मान लो ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस में दे रखी है. तो हाउ विल यू प्रेजेंट दीज ऑल द आइटम? तो अब इसी को आप वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? तो वी टू कैलकुलेट. अब इसमें भी आपको स्टेशनरी परचेज में दे रखी है. हमें इसको परचेज में बदलना सबसे पहले. तो दिस इज सेम योर वर्किंग नोट. कैलकुलेशन फॉर स्टेशनरी परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड. अगर आप स्टेशनरी परचेज पहले निकालना चाहते हैं तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का एडजस्टमेंट अपन सबसे लास्ट में करेंगे. और केवल आपको स्टेशनरी कंज्यूम ही निकालनी है. तो आप इसमें से 3 आइटम ऐड होती है और 3 आइटम लेस होती है. तो डायरेक्ट कंज्यूम निकल जाएगी. तो अब मैं आपको इसमें पहले परचेज और फिर कंज्यूम सब अलग अलग बता रहा हूं. तो दिस इज दी जस्ट हाउ विल यू जस्ट शो दिस आइटम. So as I explained earlier in previous example, that is the same. First we write cash paid for stationery. Cash paid for stationery. This is cash paid for stationery in current year, but not stationery purchase. How much cash paid for stationery? Cash paid for stationery are 25,000. In place of this, it may be given cash paid to creditor for stationery. इसकी जगह पर creditor for stationery को पेमेंट किया ये भी लिखा हो सकता है. तो we to just convert the purchase. So just this is the cash paid for stationery is 25,000.
फिर टू कन्वर्ट इनटू स्टेज 3 परचेज एंड स्टेज 3 कंज्यूम। तो अब ये अपने इंफॉर्मेशन है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था। मैं 1 सेकेंड जस्ट आई रिपीट, आपको एक बार वापस बता देता हूं। ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक है। तो वी हैव टू आइटम। नंबर 1 क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, दिस यू कैन कंसिडर एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड फॉर स्टेशनरी। तो ये तो प्रीपेड है ये। तो अगर आपको प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट याद हो तो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, क्लोजिंग को ऐड करेंगे, ओपनिंग को लेस करते हैं, प्रीपेड को क्या करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं, ओपनिंग को प्लस करते हैं। तो उससे क्या निकल जाता है, हमारा पेमेंट एक्सपेंस में बदल जाता है। तो सिमिलरली हियर वी कैश पेड टू कंसीडर और कन्वर्ट इनटू स्टेशनरी परचेज। तो पहले मैं आपको परचेज निकाल के बताता हूं, फिर हम कंज्यूम करेंगे। तो कैश पेड फॉर स्टेशनरी, तो दो आइटम अपन ऐड करेंगे, कौन कौन सी, ऐड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग। तो क्लोजिंग क्रेडिटर को आप ऐड करेंगे। तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग हाउ मच इट इज, 4000। तो वी विल राइट आइटम 4000। एड प्रीपेड फॉर स्टेशनरी ओपनिंग, हाउ मच प्रीपेड फॉर स्टेशनरी ओपनिंग, प्रीपेड फॉर स्टेशनरी ओपनिंग है 3000। एड किया तो 25 प्लस 4 प्लस 3, तो 29 32, तो दिस इज 32,000। अब ये ऐड क्यों किया, इसका टेक्निकल पॉइंट समझो। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग का मीनिंग क्या हुआ, परचेज स्टेशनरी इन करंट ईयर बट कैश नॉट पेड। प्रीपेड स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ, स्टेशनरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर बट परचेज इन करंट ईयर। इन दोनों में स्टेशनरी को हमने परचेज इस साल किया लेकिन पैसा इस साल नहीं चुकाया। तो इसका ऑपोजिट अपन क्या करेंगे, वी विल माइनस टू आइटम लेस क्रेडिटर ओपनिंग। क्रेडिट का मतलब पूरा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग हाउ मच इट इज 5000। तो 32 माइनस 5 हाउ मच इट इज 27 लेस प्रीपेड क्लोजिंग। तो हाउ मच प्रीपेड क्लोजिंग, प्रीपेड फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग है 2000। तो प्रीपेड को अपन माइनस करते हैं, तो दिस इज 25,000। तो ये हमारी निकल गई स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज। तो अब इसको आप वापस एक बार देख लें। कैश पेड फॉर स्टेशनरी 25,000, 25,000 हमने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया। एड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग, एड प्रीपेड फॉर ओपनिंग। इन दोनों में स्टेशनरी परचेज करंट ईयर में की है, पेमेंट करंट ईयर में नहीं किया, तो ऐड की। इन दोनों में क्या हुआ, पेमेंट इस साल किया लेकिन स्टेशनरी साल नहीं खरीदी। क्रेडिटर ओपनिंग, तो ये पिछले साल पैसा मांगते थे, क्रेडिटर ओपनिंग फॉर स्टेशनरी, प्रीपेड क्लोजिंग फॉर स्टेशनरी। तो इन दोनों में क्या हो रहा, पेमेंट इस साल हो रहा है लेकिन स्टेशनरी साल नहीं खरीदी। क्रेडिटर ओपनिंग का मतलब पिछले साल उधार खरीदी, पैसा इस साल दिया। प्रीपेड क्लोजिंग, तो पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, तो पैसा इस साल चुकाया अगले साल के, लेकिन स्टेशनरी कब खरीदेंगे, अगले साल। तो इन दोनों में स्टेशनरी साल नहीं खरीदी, तो ये आपने खरीदी कितनी 25,000। तो एड ओपनिंग स्टॉक, तो हाउ मच ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आर बीइंग रुपीज 5,000। तो 25 प्लस 5 इज 30,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन फुल यू कैन राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 7,000। हाउ मच कंज्यूम 20
23,000. This is your stationery consumed. अब स्टेशनरी कंज्यूम हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप ये बता ही देंगे। बाकी आपको सबको पता ही है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में बताएंगे और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।